Good morning student, welcome to Bharat Vikas Convent School. I am Spriti Pragya and today is your English literature class. Okay, take your English book. The page number is 17. Open your books and the page number is 17. In our previous class, we discussed or we learned a story about Rip and Winkle. Okay, we almost the one page paragraph are completed. Now today is our second paragraph is start. Okay, first I loudly read the story, then I explain it. Okay, let's see. Through his beard and thoughts, I am pretty sure I don't have this when I went to sleep. He decided that he would get a shave done as soon as he got home. He reached down to pick up his axe, but noticed that it was worn out. As he neared the town, he noticed that something was wrong. He realized that he did not recognize anything. People began to crowd around him. A man forced his way through the crowd and walked up to Rip. "Sir, I don't want to be rude, but you look a little lost," he said. "Yes, I feel a little lost," replied Rip. "Who are you?" "I am the mayor of the town," he answered. "You are lying." Rip and angry. Rip said and angry. "I know the mayor and you are not him." The man began to lose his patience. "Have you looked in a mirror lately?" said the mayor. "Well, not recently. I have been," began Rip. As he was talking, someone handed him a mirror. "But his can't be right," he cried. "Yesterday I was the most popular man in town. Has not anyone heard of Rip and Winkle? When I was a boy, my parents told me about a man who had disappeared in the woods. But that was 20 years ago," said the mayor. "My wife?" said Rip. "She's gone. She's not she." "I am afraid so," said the mayor. "I am free," exclaimed Rip. But as he reached his house, he felt like something was missing. There was a warmth missing from his home. Rip missed his wife. He was in pain. He was sad. He sat in chair and closed his eyes and soon fell asleep. A cold breeze woke Rip up. As he opened his eyes, he realized that he was in the middle of the woods. He noticed that his beard and pen were gone and it had all been a dream. Rip had never been too happy in his life. He ran back home to tell his wife that he loved her. And of course, he forgot to bring back the firewood. Okay. अभी हम लोग रीडिंग खत्म कर लिए. अभी हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में रीप के साथ क्या हुआ. पहले हम लोग पता था कि रीप एक लेजी और बहुत ही क्या यूजलेस मैन है, लेकिन वो नेचर में बहुत अच्छा था. उसके लिए टाउन में सारे अच्छे बात बोलते थे. तो पिछली बार क्या हुआ था, उनकी वाइफ ने उनको जंगल में फॉरेस्ट को भेजे थे कुछ वुड लाने के लिए. ठीक है, फिर वो बहुत डीप स्लीप में सो गए थे. जब वो नींद उनका खुला तो क्या हुआ, उनका बड़ा बड़ा नोज निकला हुआ था. बियर्ड सारे उनका पक गए थे, इन द सेंस व्हाइट हो गए थे. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, थ्रो हिज बियर्ड हेड थॉट आई एम प्रीटी श्योर आई डोंट हैव हिज व्हेन आई वेंट टू स्लीप. वो सोचने लगे कि जब मैं सोई थी तब तो मेरे अंदर ये सब चेंजेस नहीं था, मेरा बियर्ड ऐसे व्हाइट नहीं थे. तो वेकअप के बाद, उठने के बाद सडन ये सब क्या हो गया. He decided that he would get a shave done as soon as he got home. वो सोचने लगे कि अगर मेरा बियर्ड इतना पक गया है, ऐसे व्हाइट कलर का हो गया है, तो जब मैं घर को जाऊंगी उससे पहले ही मुझे ये सेव करना है. इन द सेंस सारा काट के क्लीन कर देंगे बियर्ड को. ठीक है. He reached down to pick up his axe, but noticed that it was worn out. तो वो जब उनके एक्स की तरफ देखे, इन द सेंस कुराड़ी की तरफ वो जब देखे, वो देखने लगे ये तो पुराना हो गया है और इसमें तो धार ही नहीं है, ये तो सेव होगा ही नहीं. worn out in the sense old, बहुत पुराना है. ठीक है. As he neared the town, वो टाउन के नियर इन द सेंस टाउन के आसपास पहुंच
Okay, he noticed that something was wrong. वो देखने लगे कि कुछ अलग और बहुत कुछ चेंज हो गया है, कुछ गलत हो रहा है. He realized that he did not recognize anything. वो सोचने लगे कि अरे मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है. People began to crowd around him. People जो सारे टाउन के पीपल्स थे वो उनके आसपास, उनके मतलब अराउंड में घेरने लगे, उनको देखने लगे. क्या हुआ फिर? A man forced his way through the crowd and walked up it. वो देखे कि इतने क्राउड के अंदर, इतने मतलब भीड़ के अंदर से कोई एक मैन उनके तरफ चल के आ रहा है और बोला, सर आई डोंट वांट टू बी रूड. मैं आपके साथ बहुत रूड नहीं होना चाहती हूँ. इन द सेंस बहुत रूड इन द सेंस क्या होता है, जो बहुत बेशर्मी से जो आपके साथ बिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनको रूड बोलते हो. ठीक है, तो वो बोलने लगे कि सर मैं आपके साथ रूडली मतलब बिहेव करना नहीं चाहती हूँ, बट यू लुक ए लिटिल लॉस्ट, ही सेड. पर आप बहुत कुछ चीज मिस कर गए. इन द सेंस लॉस्ट, आप बहुत कुछ चीज छोड़ गए. यस आई फील ए लिटिल लॉस्ट, रिप्लाइड रीप. रीप बोले, हाँ ये तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ मिसिंग कर चुकी हूँ, मैं कुछ लॉस्ट कर चुकी हूँ. फिर रीप ने पूछा, आप कौन है? हु आर यू? आई एम द मेयर ऑफ दिस टाउन, ही आंसर्ड. वो जो मैन उनको पूछ रहे थे वो बोले कि आई एम द मेयर इन दिस टाउन. मतलब मेयर इन द सेंस क्या होता है? हेड ऑफ द टाउन. जो टाउन की हेड होते हैं उनको मेयर बोला जाता है. तो वो बोले कि मैं इस टाउन की मेयर हूँ. द मैन ओके देन यू आर लाइंग, रीप सेड एंग्रीली. रीप बोलने लगे कि ना आप झूठ बोल रहे हो, मतलब गुस्सा होके बोले आप झूठ बोल रहे हो. आई नो द मेयर, मुझे पता है मेयर कौन है. तो फिर द मैन बिगेन टू लॉस हिज पेशेंस. तो वो जो मेयर उनसे बात कर रहे थे वो उनका पेशेंस इन द सेंस जो धैर्य शक्ति होता है ना बोलने का या कुछ मतलब लोगों से बात करने का, तो वो पेशेंस वो लूज कर चुके थे. ठीक है. हैव यू लुक्ड इन ए मिरर लेटली? आप कितने दिन पहले आप मिरर में देखे थे अपने आप को? वो बोलने लगे मेयर. वेल नॉट रिसेंटली. रीप बोले कि नहीं अभी तो मैं रिसेंटली नहीं देखी हूँ. आई हैव बीन बिगन रीड. मैं बहुत आगे देखे मतलब मिरर में देखी थी खुद को. एज ही वाज टॉकिंग समवन हैंडेड हिज ए मिरर. तब से जब वो बात कर रहे थे तब क्या हुआ, कोई एक आके उनको मिरर पकड़ा दिया. ठीक है. फिर क्या हुआ, ही दिस कैंट राइट. बट वो अभी देख के वो कैसे रिएक्ट किया, ही क्राइड मतलब वो रोने लगे, देख के खुद को रोने लगे. यस्टरडे आई वाज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन टाउन. कुछ दिन पहले ही मैं इस टाउन की बहुत पॉपुलर मैन थी, जो मुझे हर कोई अच्छे तरफ से मतलब जानते थे और अच्छे बोलते थे मेरे बारे में. ठीक है. When I was a boy, my parents told me about a man who had disappeared in the woods. वो जो हैंडेड मतलब जो मिरर उनको पकड़ा गए, वो बोला कि जब मैं छोटा बच्चा था तब आपके बारे में बहुत सारा बात करते थे कि आप कभी जंगल गए थे. ठीक है. देन बट दैट वाज 20 years ago, said the mayor. फिर मेयर बोलने लगे वो तो बहुत पुराना है. 20 years इन द सेंस 20 साल पहले के बात था वो. फिर क्या हुआ, my wife said Reep, she is gone, she is not she. मतलब रीप ने पूछा मेयर को कि क्या हुआ, मैं क्या मेरे वाइफ को लॉस्ट कर चुकी हूँ, क्या वो मर गई है या जिंदा है, वो क्वेश्चन किए. आई एम अफ्रेड सो, सेड द मेयर. तो मेयर बोले मैं बहुत दुखी हूँ कि वो अभी नहीं रहे, मतलब उनकी वाइफ मर चुकी थी. ठीक है. फिर क्या हुआ, बट एज ही रीच्ड हिज हाउस. फिर क्या हुआ, रीप गए उनके हाउस को. ही फेल्ट लाइक समथिंग वाज मिसिंग. उनको क्या लग रहा था मैं कुछ मिस कर चुकी हूँ या फिर मैं कुछ खो दी हूँ. ठीक है. देयर वाज ए वार्मथ मिसिंग फ्रॉम हिज होम. उनकी होम के अंदर ही कुछ मिसिंग था. इन द सेंस वो अपनी वाइफ को मिस कर रहे थे जो कि अब दुनिया में नहीं रहे. रीप मिस्ड हिज वाइफ. ओके. ही वाज इन पेन. तो जब उनको दुख लगा कि मेरी वाइफ नहीं है तो वो बहुत पेन में आए. इन द सेंस वो बहुत सैड हो गए. ठीक है. ही वाज सैड. ही सेट इन ए चेयर एंड क्लोज हिज आईज. वो चौकी में या चेयर में बैठ गए और क्या है आंख उनका क्लोज हो गया, बंद हो गया और वो बहुत जल्दी एक नींद में चले गए सोने के लिए. फिर एक कोल्ड ब्रीज वेक रीप अप. एक ठंडी से हवा आया और क्या हुआ, रीप फिर से उठ गए नींद से. As he opened his eyes, he realized that he was in the middle of the woods. जब उनका नींद खुला तो वो देख रहे हैं वो जंगल के अंदर ही बीचों बीच फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे सोए थे वो वहीं पे सोए हुए हैं. He noticed that his beard and pain was gone. वो क्या नोटिस किए, उनका बियर्ड जैसा था वैसा है, वो मतलब पका नहीं हुआ है, व्हाइट कलर का नहीं हुआ है और उनका जो बॉडी का दर्द था, पेन हो रहा था वो भी अभी नहीं रहा. ठीक है.
ये ड्रीम था, मतलब मैं एक सपने में देख रहा था सब कुछ। ओके, ही गो टू हिज होम, हैड नेवर बीन सो हैप्पी हिज लाइफ। वो घर गए और क्या वो ये सब ड्रीम देख के वो खुश नहीं थे। एंड ही सेड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को इसके बारे में डिस्कशन किए कि मैं नींद में ऐसे ऐसे सपने में देखी थी। ही रन बैक होम टू टेल हिज वाइफ दैट ही लव्ड हर। ओके, वो घर को गए, उनकी वाइफ को बोले और उनको वाइफ को वो बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि वो पहले लाइफ में उनकी वाइफ से बहुत चिड़चिड़ हो रहे थे। एंड ऑफ कोर्स ही फॉरगेट टू ब्रिंग बैक द फायरवुड। वो इतने जल्दी जल्दी में घर को आए इतना बैड ड्रीम देख के कि वो उनकी वाइफ जो वुड लाने के लिए बोला था, लकड़ी लाने के लिए बोला था, वो भूल गए। सो ये था आपका रीफ एंड विंकल का स्टोरी। सो टुडे इज द रीफ एंड विंकल चैप्टर इज completed. I hope so you all are understand this story. Okay, in our next class we discuss our question answer.